Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Servotec Power Systems Limited Q1 FY25 earnings conference call hosted by Ventura Securities Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need any assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and then 0 on your touch-tone phone. Please note this conference is being recorded. The company is today represented by Mr. Raman Bhatia, Founder and Managing Director, and Mr. Vipin Kaushik, Finance Controller. I would now like to hand over the call to the Managing Director of the company, Mr. Raman Bhatia, for his opening remarks. Thank you and over to you, sir. Thank you. Good evening, everyone. Thank you for joining us today to discuss Servotec Power Systems Limited performance in the first quarter of this financial year. I am thrilled to share that we had a remarkable quarter. We have dedicated significant effort to developing new ideas and sustainable growth strategies, and the results are evident. Let's begin with the financial highlights. Our total income for the quarter reached a robust 112.43 crores, representing a substantial 41% increase compared to the same period last year. This significant growth is primarily attributed to the surge in electric vehicle adoption. The government emphasis on reducing oil imports through EV promotion has created a favorable market, and we have successfully secured orders for EV chargers from over 90% of oil marketing companies. The rising popularity of EVs and the increasing demand for robust charging infrastructure have been key drivers of our growth. Our profit also soared by 29%, reaching 20.38 crores. Our earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, EBITDA stood at 8.54 crores, reflecting a 20% increase, while our profit margin has slightly decreased due to the startup cost of our new factory. But we are confident that it is sufficient to delight our shareholders with our overall financial performance. Beyond the numbers, we have made substantial progress in product development in this quarter. We have developed technology that enables CCS2 chargers to accommodate electric vehicles with GBT connectors, eliminating the need for dual charging infrastructure. We have upgraded our charger range for offering to cater to the international market. We have commenced the domestic production of 30 kW power module, a key component of every fast charger in a market currently dominated by China with a 90% share. We have integrated solar power and energy storage with EV charging to enhance charging efficiency in area with limited grid access. A tutorial video is available on our YouTube channel also. We are proud to have installed over 5,800 EV chargers across India, demonstrating our commitment to accelerating the adoption of electric vehicles. Our dealers and distributor network is expanding rapidly to increase our market reach for our solar products also. Our objective is to produce world-class products at a competitive price. We are investing heavily in research and development to create innovative high-quality products that meet global standards. We are eager to expand our business internationally. We are deeply committed to clean energy and are investing in EV charging and other green energy solutions for sustainable future. Overall, we are extremely pleased with our first quarter performance. We are optimistic about the future and believe our focus on innovation, quality and sustainability will continue to drive our success. Thank you to our dedicated team, valued customers and supportive shareholders. I am now ready to address any questions you may have. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. If you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad and please wait for your turn to ask the question. If you would like to withdraw your request, you may do so by pressing star and 1 again. I repeat, ladies and gentlemen, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. Our first question comes from Agastya Dave from CAO Capital. Please go ahead. Hello, audible?
You're audible, sir. Please go Hello. ahead. Thank you for the opportunity. नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन सर। डेफिनेटली जैसा आपने लास्ट क्वार्टर में कहा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। सर मेरे 3 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था कि अब जब अपनी कैपेसिटी स्टार्ट हो गई है, स्टेबलाइज भी हो गई है, तो नए ऑर्डर इनफ्लोज आप कितना एंटरटेन करेंगे? क्योंकि आपकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, लेकिन ये साल आप कितने ऑर्डर इनफ्लोज लेने का आपने सोचा है? सेकंड क्वेश्चन है सर कि जी सॉरी, क्वेश्चन एक एक करके ले लें, क्योंकि जब आप तीनों क्वेश्चन बोल देंगे जैसा आपको ठीक पड़ेगा बेटर रहेगा। क्वेश्चन जो आपका है, इसमें हमने जो प्लान किया है, इस साल में हम 12,000 चार्जर्स का मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है हमारा, डीसी फास्ट चार्जर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट जी। जिसका मतलब हम लगभग 1,000 पीस पर मंथ की एवरेज पे लेके आना चाहते हैं। जो मेरा ऐसा मानना है या जितनी मेरी कॉमन सेंस है, ये कैपेसिटी के लेवल के चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में या चाइना में भी बहुत गिनती की कंपनियां जो करती हैं, इंडिया में शायद ही कोई होगी हमारे अलावा। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है जो हम इस साल में अचीव कर लेंगे। जी। और सर इसमें आपके पास ऑर्डर बुक कितनी है अभी सर, फर्म ऑर्डर्स? अभी हमारे पास जो ऑर्डर बुक है वो करीब 8-8,500 पीस की है। अच्छा, तो करीबन 3/4 आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक में है, जितना आपने टारगेट रखा है। जी, ग्रेट सर। सेकंड सर, कंपोनेंट कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी का क्या सिचुएशन है सर फॉर द नेक्स्ट 6 महीने की? आपको विजिबिलिटी कुछ प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन के चांसेस, सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से कुछ देख रहे हैं सर आपको? आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की भी बात की थी काफी कंपोनेंट्स की, तो वो भी कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है सर? जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसमें 2 चीजें मेजर थी, जो हमने पिछली बार भी जो शायद लास्ट 4th क्वार्टर में बात की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि एक हार्ट होता है और एक ब्रेन होता है, ठीक है। और हमने आपको कहा था, अपने सभी इन्वेस्टर्स को बताया था कि जो ब्रेन है उसकी गवर्नमेंट की जो डेडलाइन है वो है 2 जून। वो हम अचीव कर चुके हैं, और वो जो ब्रेन जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सेट, वो इंडिया में हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। जी सर। और जो पावर मॉड्यूल है उसकी लास्ट डेट है 2 दिसंबर, और हमारा टारगेट है उससे पहले भी वो भी कर लेंगे। वहां पर सर प्रोग्रेस कैसी है सर? आप जैसा आप लास्ट क्वार्टर में जो टाइमलाइंस आपके वही अभी चलते रहेंगे सर आगे भी? आप कंफर्टेबल हैं इस सिचुएशन में? हाँ, लगता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा अचानक आ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ग्रेट सर। सर यही मेरे 2 मेन क्वेश्चन थे सर। आई गो बैक इन द क्यू सर, एंड कंग्रेचुलेशन अगेन सर। काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर। ग्रेट सर, ग्रेट टू सी द कंपनी ग्रोइंग रैपिडली नाउ सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you, sir. Our next question comes from Nandish Shah from Neo Health Management. Please go ahead. Hello. Am I audible? Yes, you're audible, sir. Sir, first question is on the competitive landscape and how our product is different from our competitor. Can you throw some light on that, please? सर ऐसा है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आज हिंदुस्तान की मार्केट में है, या ग्लोबली है, जो ग्लोबल लेवल पे जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उसको इंडिया में बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ही 1-2 ही हैं, जिनमें से एक हम हैं। बाकी सब यहाँ पे इम्पोर्टर हैं या वो किसी ना किसी से ले रहे हैं। तो अगर हम ये बात करें तो बहुत सारे ओईएम्स को हम सर्व कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। तो जो बेस्ट और इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी या स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है, हम उसको अडेयर करते हैं और उस क्वालिटी को कैटर कर रहे हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू अपडेट अबाउट योर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कौन सा सर? जो हमने वहां पर 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी सर, हमारी ना एक स्टेट पॉलिसी है। अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, यानी कि अगर हम बात करें तो सर्वोटेक में जो वैल्यूज और कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ रिफ्लेक्शन मेरा भी रहता है
क्योंकि मैं कहीं शुरुआत से ही हूँ। तो हमारा एक पॉलिसी है, उसको हम कहते हैं वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 1। तो जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज में बहुत टाइम लग रहा है। हमें जमीन आज तक अलॉट नहीं हुई, तो हम रुके नहीं हैं। हमने जमीन लेकर ऑलरेडी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को अगले स्टेप पे बढ़ा दिया था, जो पहले ही बताया गया था। अब हमने उसके साथ की और जमीन भी एक्वायर कर ली थी और वहां पर अगली फैक्ट्री भी साथ ही आ जाएगी। तो हम रुक नहीं रहे हैं। अगर वो हमें दे देंगे तो ये हमारे लिए बोनस होगा, अगर वो नहीं देंगे तो हमारी कोई भी प्लान अगले 5 साल के रुकेंगे नहीं। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूपी। इट इज वेरी क्लियर मैसेज टू एवरीवन कि हम किसी के लिए नहीं रुके। जो हमारे प्लान हैं हम उसको अचीव कर लेंगे। वो हरियाणा में होंगे या कहीं और होंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूपी। सर एक क्वेश्चन था, ये आपका 31 मार्च पर आपका ग्रॉस ब्लॉक था अराउंड 46 करोड़ एंड आपने ये क्वार्टर में करीबन 98 करोड़ का टॉप लाइन आया है। तो इवन इफ वी अज्यूम दैट वी गेट अ कंसिस्टेंट रेट ऑफ 100 करोड़ टॉप लाइन, so we can reach 400 crores for FY25. So what kind of asset turnover can we look at? Because currently our asset turn is almost 1.5 times. उसके ऊपर आप कुछ सर अगर आप जो कह रहे हैं, अगर मैं आपके पॉइंट से देखूं तो सर लास्ट ईयर की जो टर्नओवर थी वो तो 60 करोड़ थी। उसके हिसाब से तो 240 करोड़ होना चाहिए था। और उससे लास्ट ईयर में तो हमारी टर्नओवर 30 करोड़ थी, तो 120 करोड़ होना चाहिए था। सर ये क्वार्टर बेस नहीं होता, इसमें सेकंड हाफ जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्नओवर बढ़ती है। अगर आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड, मेरा सा मानना है अब तो 7 साल के रिकॉर्ड हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं सर्वोटेक के, आप उसका जो पैटर्न है वो देख सकते हैं। ये बिजनेस पैटर्न हमारा ऐसा ही है, क्योंकि हमारा 60% जो बिजनेस है वो प्रोजेक्ट से आता है, राइट। तो वो पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो कंसोलिडेशन करके आपको देखना पड़ेगा टोटल पे, तो आप क्वार्टर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि हर ब्लॉक जो बनाया जाता है, हम लोग उस तरीके के प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं कि हम हर रोज 1000 पीस बनाते हैं और साल में इतने बना लेंगे। हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने टेंडर और हमारे प्रोजेक्ट्स के बेस पे बनानी पड़ती है, बिल्ड करनी पड़ती है, ताकि वो उस पीक को संभाल पाए और उस पीक को सर्व कर पाए। तो असेट ब्लॉक भी इसी तरीके से बनेगा। करेंटली अपना वर्किंग कैपिटल डेज इज अराउंड 112 110 आसपास। तो वो कितना छोटा सा क्या है? हाँ प्लीज सर अगर आप वैसे देखें तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला चलता है एज पर द अकाउंटिंग लॉ, उसमें आप बिल्कुल ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च में हमारा जो आउटस्टैंडिंग था, राइट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हैं। बट अगर मैं ये बात करूं कि लास्ट क्वार्टर की जो टर्नओवर थी वो 136 करोड़ थी और उसके ऊपर जो डेटर्स थे वो 80 करोड़ के थे। तो अब आप बताएं मैं कितना इनके डेटर मानूं? गॉट इट सर, मैं समझ गया। तो आपका मैक्सिमम आपका टॉप लाइन ही मार्च महीने का था, उसके वजह से आपका डेटर नंबर ज्यादा दिख रहा है। तो उसमें चेंज होगा ना। तो लेकिन जो स्टैंडर्ड रूल है वो थंब रूल ये कहता है कि टोटल रेवेन्यू को से डिवाइड कर दो। गॉट इट। लेकिन सर अभी अपना जून में कितना होगा वर्किंग कैपिटल साइकिल करेंटली, अगर आप वो डिस्क्लोज कर पाए तो? क्या आप तो समझिए सर, मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो हैंडी फिगर नहीं है मेरे सामने। मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ बड़ा होता तो फ्लैग हो गया होता अब तक मैनेजमेंट को। गॉट इट। ठीक है सर, आई एम डन विथ माय क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. Our next question comes from Rahul Shah from Star Investments. Please go ahead. Hello. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. So, sir, congratulations on the good set of numbers. So, my first question is regarding like what will be our long-term like sustainable EBITDA and PAT margins, considering like we have a minor decline in this quarter. नहीं सर, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूँ। एबिटा मार्जिन डिक्लाइन हुआ है ऐसा आप कह रहे हैं?
हाँ, पर जैसे हमारा लॉन्ग टर्म लाइक एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन क्या नहीं, लेवल? मैं स्टिल नहीं समझ पाया। आप जो मैं आपका सवाल समझा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मुझे यस करेंगे या नो करेंगे। मैं ये समझ पाया हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि एबिटा मार्जिन आपका जो है वो गिर गया है इन कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर, ऐसा आप कह रहे हैं। क्या मैं ये ठीक समझा? यस सर, ये सर राइट मेरा है मानना है सर। कि कहीं कोई गलती है। मेरा एक सेकंड सर। सर जो मेरे पास रिकॉर्ड हैं वो ये कहते हैं कि Q4 का जो एबिटा था वो था लगभग 4.76%, और अगर मैं पूरे साल का देखूं तो वो था 7%, 7.07%, और 30 जून का यानी कि Q1 का है 7.18%। अकॉर्डिंग टू दिस तो ये इम्प्रूव हुआ, ये गिरा तो नहीं। राइट। तो कुछ हाँ गड़बड़ सर, है पर मेरे जैसे ख्याल से। मतलब लॉन्ग टर्म लाइक क्या रहेगा सर, कौन से रेंज में रहेगा सर अपना लाइक एबिटा इन पैट? सर मैंने एक बात का जवाब पहले भी दिया था, मैं माफी चाहूंगा ये शब्द मुझे कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी एक ही बात बोली थी कि एबिटा और इन सब चीजों से ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जब आप एक्सपेंशन मोड में होते हो तो बहुत सारी चीजों के इम्पैक्ट आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एज पर द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वी आर ग्रोइंग डे बाय डे, वी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर आप देखेंगे तो हम हर एक लिहाज से तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंपनी के ऊपर ना तो डेट का प्रेशर है, राइट, ना ही ऑर्डर का प्रेशर है, ना ही सप्लाई का प्रेशर है, और ना ही प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर है। तो हर लिहाज से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको और बेहतर करने की। तो गारंटीड ये बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बहुत मल्टीफोल्ड हो जाएगा तो वो पॉसिबिलिटी तो नहीं नजर आती, लेकिन यस प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, और जो हो भी रही है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें और पैट भी देखें तो वो लगातार बढ़ रहा है। यस सर, तो हम डेफिनेटली। अपने जो भी प्रॉफिट हैं वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कंज्यूम करने की, ताकि हम बढ़िया प्रोडक्ट बना पाए, बढ़िया टेक्नोलॉजी दे पाए और नई मार्केट खोल पाए। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अभी जहां पर हम खड़े हैं वहां पर अगर हम बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में छोड़ दें, यानी कि मैनेजमेंट और जितने भी स्ट्रेटेजिक लोग हैं वो छुट्टी ले लें एक साल की, तो भी बिजनेस बड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आज पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल है। अंडरस्टैंड? यानी कि हम कुछ भी ना करें तो भी ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, जहां पर हमने जो जगह अचीव कर ली। लेकिन कल जब ये फेवरेबल नहीं होगी तब क्या होगा? तो उसके लिए आज काम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप ये समझ लीजिए कि मैं बरसात में बारिश के अंदर बाहर निकला सर पे एक मटका रख के, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मटका भर जाएगा। लेकिन अब लॉजिक ये है कि क्या मैं ऐसे 10 या 50 या 100 मटके लेके निकल सकता हूं, ताकि इतने मटके भर जाएं कि जब टाइम फेवरेबल नहीं होगा तब हम ज्यादा काम कर रहे हैं और हमें पानी की जरूरत ना पड़े। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो अगर आज एबिटा और प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आज तो मजे ले लेंगे, लेकिन कल हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो वो कल की तैयारी हो रही है, उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो आपके प्रॉफिट और एबिटा में आपको शायद कम दिख रही होगी। Okay, sir. होप Yes, यू sir. अंडरस्टैंड That व्हाट was आई एम a सेइंग। good, good explanation. Yes, sir. Got it, sir. So, sir, my next question is, sir, like, can you give some, like, throw some light on the realization of, like, per DC and AC charges, and, like, how is the margin different in both the segments? सर हमारा फोकस एसी चार्जर पे नहीं है। हम करते हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसी चार्जर की एक मार्केट है, हम उसको कैटर कर रहे हैं, बट हमारा बिल्कुल भी फोकस एसी चार्जर पे नहीं है। वी आर प्योरली मतलब इंक्लाइन टू डीसी चार्जर ओनली। और उसके अंदर हम अलग अलग तरह के मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है, जिसमें वॉल्यूम्स भी हैं, जिसमें साइजिंग भी है, और जिसके अंदर एंट्री बैरियर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी बैरियर्स भी हैं। Okay, sir. Yes, got it, sir. Sir, my, like, last question would be, sir, like, हमारा solar segment में, sir, like, what is the development, sir? Like, how is the solar segment going on, and, like, सोलर सेगमेंट में new orders सोलर का सेगमेंट में क्या अगर हम बात करें visibility है? तो जी, सोलर सेगमेंट में हम जो काम कर रहे हैं वो कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा काम हो गया है, कुछ बड़ी खबर आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट की स्कीम थी कि हर घर में बिजली की एक जो मोदी गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया है, इस मिशन में हम हिंदुस्तान की 25 स्टेट के अंदर लिस्ट होने जा रहे हैं, जिसमें से 7 में हम हो चुके हैं, और हम वहां पर एक एंड यूजर को सब्सिडी दे सकते हैं। दैट मीन वो अगर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलेगी।
इसके लिए जब हम और हमारा प्रोडक्ट एलिजिबल हो गया 7 स्टेट में, हमारा टारगेट है हम 20 से 21 स्टेट में अगले 2 महीने के अंदर हो जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वार्टर में हम हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसके बाद हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर रेंज है वो अभी करीब 97 है। हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे लगभग 15 से 20 डीलर होते हैं, करीब 1,500 रिटेलर हमारे पास हैं। हमारा टारगेट है कि 250 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएं, जिसका मतलब है करीब 5,000 रिटेलर हमारे पास होंगे अगले 1 साल के अंदर, जिससे हम मार्केट देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे सोलर में। ओके ओके सर, थैंक यू सर। इसमें लाइक एनी सर आप ऑर्डर बुक में कुछ बता सकते हो सोलर सेगमेंट में, लाइक कि अभी कुछ ऑर्डर बुक है, लाइक एनीथिंग, और आर यू एक्सपेक्टिंग लाइक वैसा कुछ ऑर्डर बुक पे? हाँ, ऑर्डर बुक उसका है, उसका रेगुलर ऑर्डर बुक है और वो एक रेगुलर सेल है, क्योंकि चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की सेल है। तो 8 से 10 करोड़ रुपए महीने की एवरेज सेल है उसकी। तो 100-150 करोड़ रुपए की एवरेज सेल उसकी आ रही है। प्लस प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। तो एक रीजनेबल सा बिजनेस मॉडल है, जिसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर टीम काम कर रही है। ओके 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 सर। और सर और एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि सर ग्लोबल मार्केट में सर हमें कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है क्या सर, लाइक अभी जैसे ग्लोबल एक्सपेंशन? बिल्कुल दिख रहा है सर। हमने अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर में हमने करीब 40 करोड़ का काम किया है लास्ट ईयर में। करंटली भी हमें लगता है कि हम इससे ज्यादा इस साल में एक्सपोर्ट कर जाएंगे। कुछ इंटरनेशनल एग्जीबिशन हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। हमारी टीम बन गई है एक्सपोर्ट के लिए, वो लोग एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट का साइकिल थोड़ा सा लंबा है, तो टाइम लगता है, बट चीजें पॉजिटिव दिशा में है। ओके ओके सर। और सर जैसे आपने से बताया कि सर कि हम काफी सर नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे, काफी एडवांस स्टेट डेवलपमेंट कर रहे हैं सर, जो आगे का फ्यूचर ग्रोथ अचीव करने के लिए सर। सो लाइक हमारा लाइक व्हाट विल बी आवर रफली R&D स्पेंड सर, लाइक अपन कितना R&D पे स्पेंड करते हैं सर इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए? R&D एक्सपेंसेस का ऐसे तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आई कैन एश्योर यू कि नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम बैलेंस शीट को बाकी सारा डेटा देंगे तो डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू। अभी हैंडी मेरे हाथ में नहीं है, तो जिस बात का जवाब मेरे पास हैंडी नहीं है उसका जवाब देने से मैं बचूंगा। कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा, तो मेरे को क्लैरिटी नहीं है अभी मेरे हाथ में कि मैं क्या फिगर बोलूँ आपको। ओके ओके सर, सर थैंक यू बट सर। उसमें अच्छा हैंडसम अमाउंट जा रहा है, काफी सारी चीजें इसको तो कर ही देना यार, ये तो मैंने पहले भी करता, अलग से दे दो मुझे जी। हेलो, मैंने नोट भी कर लिया सर को, ताकि ये हैंडी रहे हमारे पास। श्योर श्योर, डेफिनेटली सर, दैट विल बी ग्रेटफुल सर। एंड सर मेरा लास्ट क्वेश्चन सर कि जैसे सर ईवी व्हीकल्स है, लेकिन R&D के अलावा अगर आप बात करें तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम इस दौरान में लगभग 40-50 करोड़ रुपए इन टोटल लगभग हम कितना खर्च कर चुके हैं। अच्छा बेस कितना बन चुका है हमारा? 40 के आसपास हुआ ना, 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुका है। ओके ओके हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, लास्ट क्वेश्चन की सर, जैसे कि हमारा सर जैसे ईवी व्हीकल्स है सर, तो आजकल से काफी हाइब्रिड व्हीकल्स भी लाइक मार्केट में आ रहे हैं सर, तो सर उससे एनी थ्रेट फ्रॉम लाइक हमारा ईवी बिजनेस, ईवी चार्जिंग बिजनेस में सर, एनी थ्रेट फ्रॉम दैट? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बचपन में ना मैं अगर बात करूं, मैं सर्वोटेक के बचपन की बात कर रहा हूँ, मेरे बचपन की नहीं। जब सर्वोटेक बहुत छोटा था तो ऐसे बहुत सारे टाइम हमने देखे हैं जिसमें हमें लगता था कि हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, या हमें लगता था कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब हमें लगा कि अब हमें बड़ी कंपनियां खा जाएंगी। तो मुझे एक बहुत समझदार व्यक्ति मिला, तो उस व्यक्ति से मिलने के बाद एक बात मैंने सीखी, तो उसने मुझे ये समझाया कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इस दुनिया में कभी भी किसी एक ब्रांड की मोनोपोली नहीं हो पाई। कहीं पर अगर कैंपा बिकता है तो कहीं पर पेप्सी बिकेगा, कहीं पेप्सी बिकता है तो कहीं पर कोक बिकेगा, कहीं पेप्सोडेंट बिकता है तो कहीं बिनाका बिकेगा, कहीं सिबाका बिकेगा। तो कोई एक ब्रांड की मोनोपोली नहीं हो सकती, आपको सिर्फ अपना शेयर बनाना होता है। तो अगर आपका मार्केटिंग, प्रोडक्ट, क्वालिटी, सिस्टम से पकड़ है तो सर आप अपनी मार्केट बना लेंगे। तो थ्रेट नाम की चीज सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनको क्लैरिटी नहीं होती। तो थ्रेट कोई नहीं है, हमें सिर्फ अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि अगर हम कुछ भी ना करें तो भी इतना काम तो हम कर ही लेंगे, ग्रो कर जाएंगे हम। तो अभी ग्रोथ की लड़ाई नहीं है, मल्टीफोल्ड और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बातें हो रही हैं, हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। सर जैसे कि सर अगर आप मार्केट शेयर की भी बात करें सर, तो सर जैसे कि हाइब्रिड व्हीकल सर काफी लाइक अभी आ रहे, तो सर लाइक
कुछ अपना मार्केट शेयर इम्पैक्ट हो सकता है क्या? जैसे कि ईवी सर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा जब आप मार्केट में जब आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान से नोट कीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जापान की कंपनी है और कोई कंपनी नहीं है। जापान की कंपनियों को अगर हटा देंगे तो दुनिया में कोई भी कंपनी हाइब्रिड गाड़ी के बाद काम नहीं कर रही है। और जापान की जो है वो चाइना से लड़ाई है, ये जो भी उनकी है ये पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ नहीं आ रहे हैं। अगर आप जापान को हटा दें तो आप दुनिया में कहीं नहीं देखेंगे कि आपको हाइब्रिड गाड़ी मिलेगी किसी और कंपनी की। राइट सर। अभी से जैसे हम काफी ग्रोथ और वो सब देख रहे, लाइक वी आर प्लानिंग फॉर ग्रोथ एंड एवरीथिंग, तो सर लाइक आर वी लाइक एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड और लाइक वी विल नीड मोर फंड्स और वी आर प्लानिंग फॉर मोर फंडिंग इन फ्यूचर समथिंग लाइक दैट? सर ये तो फ्यूल है, ये तो सच में पड़ेगा ही जरूरत, और जल्दी जल्दी इसकी जरूरत पड़ रही है तो हमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर का हम पे भरोसा है, वो साथ दे ही रहे हैं। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम डिमांड करेंगे और लोग हमारे साथ आ जाएंगे। सर लाइक एनी जरूरत तो पड़ेगी, ये सच्चाई है, जरूरत पड़ेगी। हाँ सर जरूरत पड़ेगी, लाइक एनी लाइक लॉन्ग टर्म, लाइक कभी लाइक इन 5-6 मंथ्स सर अगले 2 सालों में हमें अगले 2 से 3 सालों में हमें ऐसा लगता है कि हम लगभग 1000 करोड़ रुपए जनरेट करेंगे फ्रॉम दैट एंड। ओके सर ठीक है सर, दिस आंसर्स ऑल माय क्वेश्चंस सर। या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. We will wait for a moment while the question queue assembles. I repeat, ladies and gentlemen, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. Our next question comes from Sanika Khimani from Sapphire Capital. Please go ahead. Hello, yeah, hi. Hello. Hello, ma'am. Your voice is not clear, ma'am. Yeah. Hi, am I audible? Yes, you're audible now. Please go ahead, ma'am. जी। Yeah. Hi, sir. I'm relatively new to this company. So, मेरे को जानना था कि आपने इस साल कितना डीसी चार्जर सप्लाई किया है, क्योंकि हमारा टारगेट नेक्स्ट ईयर का 12,000 चार्जर्स है। नो नेक्स्ट ईयर, ये इस साल की बात हो रही है मैडम। हाँ, इस साल FY25 में एक, हाँ जी बिल्कुल 24-25 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें हमने ऑर्डर बुक लगभग 24 में कितना किया था? 10-24 हमने करीब किया है 5400। 5400 जी, नॉट इन 1 ईयर, इट इज इन 2 years. In 2 years. ठीक है। एंड FY26 में हम कितना देख रहे हैं? FY26 में हम देख रहे हैं करीब 25,000। 25,000 डीसी चार्जर्स। देख रहा हूँ, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी को मैं अपनी बात को फिर दोबारा रख रहा हूँ, क्योंकि जो हम कहते हैं या जो हमारी कोशिश होती है वो ये होती है कि हम इसको अचीव करें, राइट। तो मेरा कोई भी जितने भी इन्वेस्टर यहाँ सुन रहे हैं वो मेरी किसी बात को इस तरीके से कोट ना करें कल को कि मैंने ये कोट किया है, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से टीम के साथ काम कर रहा हूँ और हम रिजल्ट दे रहे हैं। और जो हम आगे के लिए भी कह रहे हैं वो बात हम ये कह रहे हैं कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, राइट। तो बट हमें लगता है कि हमने जो भी सवाल देखे हैं हम उसको पूरा करते हैं, तो हम जरूर पूरा करेंगे। तो इट वॉज जस्ट स्मॉल डिस्क्लेमर। ओके, एंड हमारा रफली एक चार्जर का रियलाइजेशन कितना होता होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन? हम कितना में उसे सेल करते हैं? कितने में सेल करते हैं? एवरेज सेल का जो प्राइस है वो लगभग 6 लाख रुपए है डीसी फास्ट चार्जर का। तो इसके हिसाब से आप पकड़ सकते हैं करीब 750 करोड़ हो गया, 720 करोड़ हो गया अगर आप 12,000 चार्जर कर लेते हैं तो। ओके सर, थैंक यू, यही जानना था। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. There are no further questions. Now I hand over the floor to the management for closing comments. Thank you. Thank you for your participation in this session. We believe we have provided a comprehensive overview of our company and business operations. We are excited about the growth of our product portfolio and the strong momentum across our business. Our focus remains on developing new products, exploring new markets,
and creating value for our shareholders. Please contact our investor relation team, Kunal Shah, Naman Maheshwari, for any further